केसरिया बाल मावोजी पधारो नी मारे देश देश रे पधारो नी मारे देश केसरिया बाल मावोजी पधारो नी मारे देश। Hello and welcome. I'm Shivani Sharma and you're watching your favorite election show, Election Premier League. As we see, the country is celebrating the biggest democracy festival, and we are seeing that what's happening on ground in Rajasthan, what's the mood of the voters in Rajasthan. And today we are in Jaipur. Jaipur, this pink city, the epicenter of power in Rajasthan. And Jaipur happens to be one of the biggest districts with 19 assembly constituencies. And if we talk about 2018 elections, out of these 19 constituencies, 10 came to Congress, 6 came to BJP, and 3 were won by independent candidates. But what's going to happen this time? Will there be a difference? Because Rajasthan is known to alternate between the BJP and the Congress, one party at a time. But Congress is confident of creating history with a repeat victory this time. So will it happen? What is the mood of Jaipur? What are the voters going to decide? Let's talk to them. क्या लग रहा है आपको जयपुर वालों? क्या होने वाला है इस बार? कांग्रेस की सरकार वापस आने वाली है। हिस्ट्री बनने वाली है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल हिस्ट्री बनने वाली है, परिपाटी बदलेगी और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी आने वाले हैं वापस। मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। आप बताइए, आपको मोदी जी आएंगे वापस। अच्छा, बहुत सारी जनता हमारे साथ है, आपको क्या लग रहा है जयपुर क्या इस बार डिसाइड करेगा, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी 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 कांग्रेस। जिसकी मिट्टी में राणा के भाले की तपिश पुरानी है, जिसकी मिट्टी में मीरा के गीतों की एक कहानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है और राजस्थान की मिट्टी क्या तय करने वाली है उसका इंतजार हम करेंगे। 25 नवंबर वो डेट है when Rajasthan has to decide on to whether Congress will repeat its victory or BJP will come here with a thumping victory। और इसी बात को लेकर आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट आए हैं, आपसे उनका तारुफ करा दें। We'll introduce the panelists out here. I have with me Navneet ji. He is the spokesperson of the BJP. Amit Goel, spokesperson BJP. I have Ashutosh Rawat. He's a senior seasoned journalist of Rajasthan. And I have with me Harendra Pal Singh Jadon. He's from Jotwada, Jaipur. He's the block president of Congress. And I have with me Nikhil Jain, who's a political analyst. He's also an advocate. A very warm welcome, all of you. So I'll start with Navneet ji. Navneet, Congress says it will make history this time. What do you have to say? Shivani, I feel that Congress has already made history in Rajasthan. It's been 4.5 years of plunder. Rajasthan has witnessed every such incident and every such thing which was never witnessed in the history of Rajasthan. You talk about women's safety, you talk about corruption, you talk about appeasement politics. Rajasthan has been plundered by Congress government. So I feel that history has been already created by Ashok Gehlot. You talk about youth. This government who came to power talking about the employment to the youth. And the reality is today Rajasthan stands on #1 position in unemployment with 32% unemployment rate, which is 400% more than the national average. Rajasthan is #1. Yes, history is created. Definitely, you're right. History is created. हरेंद्र जी, यहाँ पर हरेंद्र पाल जी ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री बना दी है कांग्रेस ने। आपको लग रहा है क्राइम में, करप्शन में आपने हिस्ट्री बना दी है? क्या है शिवानी जी, बीजेपी वालों का एक ही काम है, केवल कमी निकालना, उसके अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है। इन्होंने इलेक्शन शुरू होने से पहले अपने हथियार डाल दिए। इनके पास एमएलए के कैंडिडेट खड़े करने के लिए नहीं है। आप जाके देखिए रोड पे क्या स्थिति हो रही है। एमएलए के कैंडिडेट को जिनको डिक्लेयर किया है ना, उनको अंदर गलियों में नहीं घुसने दे रहे। इन्होंने डिक्लेयर तो किया, आपकी तो लिस्ट नहीं आ पा रही है। आएगी लिस्ट, हमारे यहाँ ऐसी कोई मारामारी नहीं है।
जब लिस्ट आएगी देखना, मालाओं से स्वागत होगा। इनकी तरह ये नहीं है गो बैक के नारे लगेंगे। अभी कल आ जाए, परसों आ जाए, पहले जब भी आएगी हाईकमान दे देगी लिस्ट देगी, जगह जगह पे स्वागत होगा, वेलकम होगा। और 2023 में आप देखेंगे जैसे 2018 में आए थे उसी हिसाब से 2023 में वापस से कांग्रेस सरकार बनेगी। आशुतोष जी, कांग्रेस दावा कर रही है कि जगह जगह स्वागत होगा, लेकिन अभी से हमें बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो गहलोत खेमे की बात हो, सचिन पायलट खेमे की बात हो। क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर कांग्रेस ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट का झगड़ा अगर सुलझा लिया तो निश्चित तौर पर इस बार राजस्थान में बहुत रोचक मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है। जो भरत मिलाप की बातें कल दोनों लोगों ने की, अशोक गहलोत ने एक तरफ भरत मिलाप की बात की, दूसरी तरफ सचिन पायलट ने कहा कि हाँ, हमारे बीच में दोस्ती देखने लायक है। तो अगर यह दोस्ती ग्राउंड पर देखने के लिए मिली तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें होंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है। शिवानी जी। अमित जी, काले झंडे तो बीजेपी में भी बहुत सारे चल रहे हैं, चाहे वो राठौर जी की बात हो, दिया कुमारी जी की बात हो, कैसे सुलझाएंगे मतभेद? देखिए, पहली बात तो यह है कि राजस्थान की जनता अपना मन बना चुकी है। एक सरकार होती है जो काम करती है और एक होती है जो कारनामे करती है। तो पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में कुछ किया है तो कारनामे किए हैं। और आप ये देखिए, 1998 में जब अशोक गहलोत राजस्थान के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और जब चुनाव में कांग्रेस गई तो कांग्रेस की 56 सीटें आई। 2008 में दोबारा मुख्यमंत्री बने तो 21 सीटें आई। और तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने और चुनाव होने वाले हैं तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की मात्र 6 सीटें आएंगी जो एक इनोवा में गाड़ी में बैठ के जा सकें। मैं कहना चाह रहा हूँ शिवानी जी, अगर हमारी बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। बहुत सारे कार्यकर्ता जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मतलब जीत की गारंटी, और जब जीत की गारंटी होती है तो बहुत लोग प्रयास भी करते हैं। कुछ लोगों को टिकट मिलता है, एक को टिकट मिल पाता है एक विधानसभा में, बहुत लोग निराश। जीत की गारंटी आप दे रहे हैं, लेकिन पिछली बार तो 10 में से 6 ही मिले, 19 में से 6 मिले इनफैक्ट। निखिल, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन द क्लेम्स ऑफ द बीजेपी? दे से दैट दिस टाइम दे विल बी ousting कांग्रेस फ्रॉम पावर। So first of all, I'd like to disagree with Haren ji when he says that बीजेपी का सिर्फ एक काम है जुमले करना, एक और काम है झूठ बोलना। Navneet just said that Rajasthan is number 1 in unemployment. I challenge him right now to give me one credible source that says that. I had my team check it. Rajasthan is number 6 in unemployment, which is a problem across North India. The state that is number 1 is Haryana, ruled by the BJP. Then Navneet also said that Rajasthan history has been created. What about crime? The crime reporting that is happening in Rajasthan shows the faith of the people in the crime system, the criminal justice system in Rajasthan. Nice. Look at FIRs. You look at how action proceeds on FIRs. I'll give you an example that the BJP likes to take every time. Rajasthan में 19 पेपर लीक हो गए पिछले 5 साल में. Yes, true. How many paper leaks happened in Gujarat in the past 5 years? Narendra Modi's home state, 22. He can't even point me 3 cases where any trial is going on, but in the 19 paper leaks, trial is going on in all of them. Accused have been arrested. They like to rise up the boogie of crime. There is an interesting debate going on और जनता हमारे साथ है। सोने की धरती, चांदी का आसमान, बीजेपी या कांग्रेस 25 तारीख को किसको चुनेगा राजस्थान? जरा जोश तो दिखाइए राजस्थान, तालियां। कांग्रेस 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 कांग्रेस। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम, आपको क्या लग रहा है? हमारी संस्था आएगी और हमारा राज होगा और वापस से मोदी भाई आएगा और हर किसी घर में झंडा ले रहेगा। आप भी बताइए, इधर भी कुछ लोग हैं, आप बताइए, आपको लग रहा है कि बीजेपी आएगी? मैडम, ये राजस्थान में जो निरंकुश राज चल रहा है, जहां हर 3 घंटे में एक लूट, 2 घंटे में एक बलात्कार और पेपर लीक में जो युवा परेशान, इनको पूरे राजस्थान में जवाब देने के लिए हर गली गली में तैयार खड़ा है। ये जाएंगे। सत्ता की रोटी है, पलटनी चाहिए। सत्ता की रोटी पलटनी चाहिए, पलटेगी रोटी। व्हाट डू यू हैव टू से? बिकॉज राजस्थान इज नोन टू चूज one time BJP, one time कांग्रेस। अब कांग्रेस की बारी हो गई, आपको लग रहा है सत्ता की रोटी पलटेगी? What do you have to say? Shivani, it's not only about the change and the anti-incumbency. Fact यही है कि there is this line on everybody's mouth which says that Rajasthan का कुंभकर्ण is Ashok Gehlot, who was blatantly sleeping for 4.5 years. He just woke up 4 months back and he's talking about development.
any Congress candidate, I bet if can challenging here that if we can count at least 4 to 5 yojanas or Vikas yojanas in Rajasthan, if Ashok Gehlot announced it before 2022. Now because बताइए हरेन पाल जी जवाब दीजिए, कोई ऐसी योजना जो शुरुआत में शुरू की थी क्यों आखिरी में याद आती है? ऐसा है मैडम, अब की बार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे पिछली बार की गवर्नमेंट थी चाहे अब की बार की है, ये योजनाएं कोई 2022 से नहीं चल रही है। मेरे भाई साथ में खड़े हुए हैं, इनको ये नहीं पता चिरंजीवी योजना कब से चल रही है। इनको ये भी मालूम नहीं है कि ये बिजली वाली योजना चलाई है, ये 2000 यूनिट की तो अभी इन्होंने किसानों के लिए चालू की है। शुरू से हर योजना को चल रहा है। वृद्ध जितने भी व्यक्ति हैं उनकी पेंशन योजना कब से चल रही है, क्या इनको पता है? और मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूं, 2023 का इलेक्शन लड़ा, अब नहीं सहेगी मां मोदी सरकार। उस नारा कहां गया इनका? पेट्रोल डीजल वाला कहां गए? 2 करोड़ रोजगार कहां गए? 15 लाख खाते के भूल गए क्या? उन पे आइए ना मैदान में। आज इनमें से कोई भी ये नारा लेके आ रहा है क्या? बताइए अमित जी, इनका जवाब आप दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं निखिल जी की बात का जवाब दूं। निखिल जी ने कहा, बहुत गर्व से कहा, कांग्रेस के क्या कहते हैं स्पोक्स पर्सन की तरह उन्होंने बोला है कि 19 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कौन से राज्य में लीक नहीं हुए? लेकिन कौन से राज्य में ऐसे हैं कि सरकार के एक मंत्री गोपाल केसावत 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए पेपर में पास कराने को लेके। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों का नाम उसमें है। डीपी जरौली कौन सी पार्टी का था? कटारा कौन सी पार्टी का था? बाकायदा सचिन पायलट ने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आप जादूगर हैं, आप बताइए ऐसा कौन सा पंजा है कि जो बंद तिजोरी के अंदर जो पेपर रखा हुआ होता है कि दरवाजा खुलता भी नहीं है और पेपर बाहर आ जाता है। कुल मिला के लूट और झूठ की सरकार राजस्थान में चल रही है। 1.5 घंटे में एक महिला का बलात्कार हो रहा है, बच्चियां काट काट के भट्टी में फेंकी जा रही हैं, जिंदा जलाई जा रही हैं। और ये सरकार के एक मंत्री सदन में खड़े होकर जब बहस होती है इस विषय पर तो वो कहते हैं कि सरकार मर्दों का प्रदेश है, अठास लगा के। मर्दों का प्रदेश नहीं है, पन्ना धाय और मीराबाई का प्रदेश है। ये बताइए आशुतोष जी, आपसे पूछना चाहूंगी, महिलाओं का मुद्दा बहुत अहम है, इन फाइट का मुद्दा बहुत अहम है। करप्शन के मुद्दे की अगर हम बात करें, 2 मेयर्स हटा दिए गए जयपुर में, तो क्या लग रहा है आपको कि करप्शन पर कितना जवाब दे पाएगी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार? देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या यही है कि इस बार निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि देश में किसी एक मुख्यमंत्री ने एक समय में इतनी योजनाएं लागू की हों। लेकिन इसके अलावा भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष नहीं घेरता है। कांग्रेस को उनके अपने मंत्री, अपने विधायक घेरते हैं, उसके खिलाफ धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं। महिला अत्याचार पर कांग्रेस की अपनी विधायक सदन के अंदर कांग्रेस के खिलाफ बोलती है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि गहलोत साहब की छवि इस बार निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है, लेकिन क्षेत्र में जब आम जनता के बीच में कांग्रेस जा रही है तो उसको इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार 5 साल कांग्रेस के विधायकों ने क्या किया। लोग प्रश्न उठा रहे हैं कांग्रेस के विधायकों पर, कांग्रेस के मंत्रियों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर कोई निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। Nikhil, I have to ask you a question about Red Diary. You know, there have been questions from within the Congress. There have been ministers of the Congress who've been protesting on the issue of corruption. There have been mayors, there have been IAS who have been involved in corruption cases. So how Congress will overcome this factor of corruption? Who was the person who gave fire to the Red Diary allegation? Rajendra Gouda. Who is Rajendra Gouda now? Shiv Sena president in the BJP. Shiv Sena president in Rajasthan. And which faction of the Shiv Sena? The Shinde Sena, which is a puppet government. But one of the ministers himself, he has also protested. See, that is what you have to see with the Congress party, that it is a party with such democratic ethos that ministers and MLAs in a government can protest against their own government when they feel corruption is not in check. And what does the government, what does the chief minister do in return? He files the right cases. He makes sure that the investigative agencies are nabbing the right people. Arrests happen. Charge sheets are filed. Trials happen. My friends from the BJP have not been able to answer what have they done about the paper leaks in Gujarat. I can very confidently say that the Rajasthan government, Congress government, has filed cases, arrested people, filed charge sheets, accused have been arrested in pretty much all of those 19 paper leak cases, but they don't have an answer to that. Mahila Suraksha they keep on harping about. I've been noticing a pattern on the BJP's Twitter handle. What their ministers and BJP officials... So Navneet Rajpurohit wants to answer your question on this paper leak issue. Shivani, my simple question is, there are a lot of youth standing here and there are a lot of women also. You yourself are a woman. You tell me, what do you want? You want a safer society, a safer city, or you want a government who lets the criminal commit the crime? The law and order is dismal, that criminal gets the balls to commit the crime, and then they have guts to say that we are arresting people.
Do women really want the safety, or they want that you go and arrest them? They want damn safety. Secondly, you talk about youth and paper leak. So again, what does the youth want? Youth want that there should be employment opportunities, there should be fair examination process. Not that you leak the papers and then you go arrest them. What happens to the 70 lakh youth of Rajasthan who are still sitting in their homes, wasted their 5 years in coaching industry, they've spent a lot of money, but nothing has happened to their career. Congress will have to answer all these questions come this 25th November. I am telling you, Congress is whitewashed from Rajasthan, and as my friend said, they would not have sufficient numbers to even fit in Fortuner. क्या लग रहा है हरेन पाल जी, कांग्रेस को उनको नंबर नहीं मिलेगा फॉर्च्यूनर भरने के लिए? ऐसा है, ये तो अभी इनकी खुद की सोच है। कहीं ऐसा उल्टा नहीं हो कि जिस सपने में ये घूम रहे हैं ना, कि इनकी फॉर्च्यूनर के लायक भी नहीं रहे, है ना? क्योंकि अभी क्या है, गलतफहमी में दी रहे हैं। अभी आप देखेंगे, जाके देखिए, जिस पार्टी के खुद के कार्यकर्ता काले झंडे लेके पीछे पड़े हुए हैं, झंडे के साथ साथ वो वहां पे हमारे झोटवाड़ा में तो डंडे ले लेके पड़े हुए हैं पीछे। आप अनुमान लगाइए, जिसके अभी तक की स्थिति में अंदर नहीं घुसने दे रहे इलेक्शन के लिए, क्या इलेक्शन लड़ोगे आप? देखिए, काले झंडे तो हम सबने देखे हैं। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री को सदन में मारा, पीटा और घसीटा जाता है। ये आम कार्यकर्ता किसी विधानसभा में 4 लाख 4.5 लाख लोग रहते हैं, 10 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि कांग्रेस के मिनिस्टर्स, कांग्रेस के एग्जिस्टिंग मिनिस्टर को मारपीट करते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, उसके बारे में इनका कोई जवाब नहीं है। So the factor of infight is not alone with the BJP or the Congress. Both the parties are facing this. The Gehlot camp, Sachin Pilot camp, this, and we also see the number of dissidents within the BJP after the MLAs have been fielded in Rajasthan. आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी समस्या है या कांग्रेस के लिए जो अंदरूनी भेदभाव, अंदरूनी लड़ाई चल रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए समस्या यह है कि अगर उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट का अगर झगड़ा निपटा लिया तो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति हो सकती है। लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय वसुंधरा राजे सिंधिया है। अगर उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को ढंग से मैनेज कर लिया तो इस बार निश्चित तौर पर एक ऐसा मुकाबला हमको राजस्थान का रण देखने के लिए मिलेगा जो बहुत रोचक होगा और जिसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। So, Nikhil, what do you have to say? Why is this delay happening within the Congress to finalize the names? What's the issue? Is the difference between Sachin Pilot and Ashok Gehlot resurfacing? The fundamental difference is that when you look at all the marketing of the BJP, in a state election, the only face that they have is Narendra Modi. So many supporters, you ask, what? So it's a good thing for them. So many supporters, you ask, what did they say? Modi वापस आ रहा है. Just today, Priyanka Gandhi said in a rally that क्या मोदी जी प्रधानमंत्री का पद छोड़ के मुख्यमंत्री यहाँ बनने आ रहे हैं? The fact is, they don't have a face. They have a khichdi of 5, 6, 7, 8, 10, God knows how many people. They can't manage their house together. They're raising allegations that there is a problem with Pilot and Gehlot, but there's no problem. For months, they've been sharing the same stage. They've been issuing statements in each other's favors. And one thing, the state Congress has no qualms with the High Command, the Central Congress, unlike the BJP, where Vasundhara Raje's best friend is Narendra Modi, who would make sure that... तो भाई क्या लग रहा है, जनता मोदी जी का जो फेस है वो ज्यादा स्ट्रांग है या फिर प्रियंका गांधी भी आई थी, बड़े बड़े लीडर? कहीं गुंदरिया बाता में झंडो लो कांग्रेस को आता में। अच्छा, मैम इनसे 5 जने खड़े हैं बीजेपी के। एक तो इनकी वो केंद्रीय मिनिस्टर है ना स्मृति ईरानी, उनसे जरा सिलेंडर के दाम कम करा दें। और एक मणिपुर पे इनका क्या जवाब है, ये जनता को मणिपुर issue is always, it has become a shield for the Congress whenever we talk on the crime against women issue. What do you feel? Will this impact BJP? Shivani, I feel that on Manipur issue, our Honorable Home Minister Amit Shah has already replied in Parliament. But the problem is that Congress supporters have all been illiterate and uneducated, so I don't think that they would be aware about anything said in the Manipur. Now, second question, when everybody talks about other states, my simple question to Ashok Gehlot and all his supporters, including the Pravaktas, that whether they are fighting election in Rajasthan or Gujarat or Madhya Pradesh, if you are fighting election in Rajasthan, why the hell they are scaring of talking about Rajasthan here? I'll just take a quick comment. जल्दी से बताइए, एक बात बता दीजिए, कांग्रेस के एक विधायक के पुत्र एक 10th क्लास की बच्ची के साथ बलात्कार के अंदर पाए गए, पकड़े गए और उसको सरकार ने राजीनामा। बताइए, कुछ जवाब है आपके? अरे किसकी बातचीत कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अपने मंत्रियों की स्थिति देखी क्या आपने? ये ना उससे women safety पे I want to make a short point that the Gehlot government, sir, एक second, Gehlot government has brought in a law that has empowered the SPs and the SHOs. आखिरी कमेंट पत्रकार होने के नाते क्या लग रहा है, रोचक मुकाबला है राजस्थान? देखिए, मैं शिवानी जी, मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा
बेरोजगारी और युवाओं के परीक्षा की जो एग्जाम के जो लीक पेपर लीक हुए हैं, अगर उन मुद्दों पर कांग्रेस ने जनता को समझाने में कामयाब हुआ कि सरकार का फेलियर नहीं चलिए, है, तो बहुत ही- निश्चित तौर पर परिणाम कुछ भी हो। So it's an interesting fight in Rajasthan. We'll have to wait and watch what happens and what Rajasthan decides on 25th of November. Till then, we'll keep you updated from all the prominent assembly constituencies. Stay tuned and keep watching Election Premier League only on Times Now.